चलिए, गुड आफ्टरनून. Okay, good afternoon class. Let's continue with the evaporation. So evaporation is a process in which removal of solvent is occur from the solution by boiling the liquid, okay, and it leaving a concentrated product. Evaporation is a surface phenomenon, means is that the conversion of liquid into the gas is occur from the surface of the liquid. Okay, इसे मैं एक बार repeat कर रही हूँ, ठीक है. And next is the application of evaporation. So by the help of evaporation process, we manufacture many drugs, many biological products, for example insulin, enzyme and hormone. By the help of evaporation process, we prepare extract formulation, decoction. So these are some formulations that are prepared by using the evaporation process. Okay, next application, demineralization of water is done by using the evaporation process. Okay, next slide is about the type of evaporators. First is the natural circulation evaporator, second is the evaporating pan, third is the evaporating still, fourth is the forced circulation evaporator, sixth film evaporator, and seventh is the climbing film evaporator. So these are the evaporators in which evaporation process is carried out. Okay, so in your course only two evaporators are there, evaporating pan and evaporating still. ठीक है, आपको सिर्फ दो ही evaporators पढ़ने हैं. पहला है evaporating pan and evaporating still. Okay, so let's continue with the evaporating pan. It is a pan that is consist of the hemispherical pan, and it is made up of copper and stainless steel, and it is surrounded by a steam jacket. Okay, so in this jacket steam is introduced with the help of steam inlet. This steam provide a heating to the liquid molecule. ठीक है, जो हेमिस्फेरिकल पैन होता है, हेमिस्फेरिकल शेप होने की वजह से इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया for the evaporation process. Okay, and after the evaporation process is done, product is removed from the evaporating pan by tilting it. Okay, जब प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है evaporation process, उसके बाद प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए जो evaporator होता है उसको टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट करके प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, so by the help of steam, heating is performed in the evaporating pan. ठीक है, next is the working of the evaporating pan is based on the method of convection. ठीक है, कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी हीट जो ट्रांसफर करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से मूव करते हैं. ठीक है, तो एवोपरेटिंग पैन में क्या करते हैं, द डाइल्यूट सोल्यूशन इज फिल्ड इन द पैन एंड देन स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द स्टीम इनलेट इनटू द जैकेट. जैसे स्टीम जैकेट में जाती है वो स्टार्ट हो जाती है हीट देना. ठीक है, देन व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड व्हेन रिसीव द सफिशिएंट एनर्जी, इट ट्रांसफर एनर्जी to the other molecule by the help of convection method. ठीक है, convection method की help से जो molecule है जिन्हें heat मिल गई है sufficient from the steam, वो molecule अपने आगे वाले molecule को heat ट्रांसफर करते हैं. तो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होता है एंड फाइनली एवोपरेशन प्रोसेस कैरिड आउट होता है. ठीक है, तो एवोपरेटिंग पैन में जो मेथड यूज किया गया है हीट ट्रांसफर के लिए वो है कन्वेक्शन. ठीक है, फाइनली जब सफिशिएंट एवोपरेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है और प्रोडक्ट आपका कंसंट्रेटेड हो जाता है, देन बाय द टिल्टिंग द एवोपरेटर प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है. ठीक है, next is the advantage and disadvantage. In case of evaporating pan, it is simple, easy, and the material that is used for evaporating pan is easily available. ठीक है, it is easy to use and easy to clean, and by steering evaporation process को फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो evaporating pan में जो steering process होता है वो easily आप परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि जो evaporating pan होता है वो ओपन होता है. ठीक है, next is the disadvantage. First disadvantage is it is not usually evaporating used for the aqueous liquid. ठीक है, for example water. ठीक है, क्योंकि अगर उसमें solvent अगर आपका alcohol present होता है
तो सॉल्वेंट आपका इजिली रिमूव हो जाता है और मतलब पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर होगा, उन्हीं केसेस में इवोपरेटिंग पैन को यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग द इवोपरेशन प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड, ड्यू टू हाई टेम्परेचर समटाइम डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग इज अकर, ठीक है। रेट ऑफ इवोपरेशन इज स्लो इन केस ऑफ इवोपरेटिंग पैन, ठीक। Sometime there is a layer of saturated vapor is formed above the liquid surface, ठीक है। जब evaporating pan में जो liquid होता है, अगर आप उसे long time के लिए heat करते हो तो white white सी एक layer बन जाती है liquid के surface पे, जिसकी वजह से resistance create होता है, evaporation perform नहीं हो पाता है properly, ठीक है। जो वेपर्स जो एवोपरेटिंग पैन से निकलती है, इट इज डायरेक्टली मिक्स विद द एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एंड जो पर्सन उसे परफॉर्म कर रहा है, मे बी इट इज नॉट यूजफुल फॉर द पर्सन, वो जो उसे परफॉर्म कर रहा है, जो एवोपरेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है बाय यूजिंग द एवोपरेटिंग पैन, ठीक है। सेकेंड है आपका 6 पॉइंट है, ड्यू टू अनयूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट नियर द वॉल ऑफ द पैन इज सम टाइम चार्ड। चार्ड मीन्स होता है, आपने देखा होगा जब आप किसी भी बर्तन को, बड़ा बर्तन है, अगर आप उसे गैस पे चढ़ाते हो और अगर उसकी हीटिंग कर देते हो तो जो साइड में जो चिपका होता है मटेरियल कंटेनर की वॉल पे, वो कई बार जल जाता है। देखा है बेटा, देखा है? यस मैम। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जो इवोपरेटिंग पैन होता है, जब उसमें कोई भी लिक्विड को आप जब हीट करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे चिपके रहते हैं, उनको हीट ज्यादा मिलती है, जिस वजह से वो जल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इवोपरेटिंग पैन में आती है, ठीक है। एंड दिस पैन इज नॉट सुटेबल फॉर दी थर्मोलेबाइल ड्रग, क्योंकि इसमें हीटिंग बहुत देर तक की जाती है और हीटिंग मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इवोपरेटिंग पैन। सेकेंड एवोपरेटर इज एवोपरेटिंग स्टिल। एवोपरेटिंग स्टिल इज कॉल्ड एज स्टिल बिकॉज इसमें जो एवोपरेटर होता है वो होता है। हाँ बेटा। मैम प्रदीप कह रहा है रिक्वेस्ट मैम की हुई है, उसे ज्वाइन करवा दे। प्रदीप शो नहीं कर रहा है, आसरा खान की आ गई है। प्रदीप मेरे इसमें शो नहीं हो रहा है। संदीप कमल, आसरा खान, उज्जवल, प्रदीप, हाँ शो हो गए, मैंने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द एवोपरेटिंग स्टिल। एवोपरेटिंग स्टिल इज ऑल्सो नोन एज स्टिल बिकॉज इन दिस इट इज कवर्ड, ठीक है। जो एवोपरेटर होता है स्टील के केस में वो कवर होता है, वहीं पे जो एवोपरेटिंग पैन होता है वो ओपन होता है, ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एवोपरेटिंग स्टिल्स को स्टिल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर कवर्ड, ठीक है। सो बाय द हेल्प ऑफ क्लैम्प्स उनको कवर किया जाता है। क्लैम्प्स आपने देखे होंगे, जैसे कुकर होता है, जो नए तरीके के हॉकिंग से कुकर आते हैं, उनको साइड से क्लक करके बंद करते हैं। यस मैम। तो सेम वही चीज होती है क्लम्प। तो जो एवोपरेटर के ऊपर जो लिड होती है उसको क्लोज करने के लिए क्लम्प्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो एवोपरेटिंग स्टिल्स होते हैं उन्हें क्लोज करने के लिए, कवर को क्लोज करने के लिए क्लैंप यूज किए जाते हैं, ओके। सो वर्किंग ऑफ द एवोपरेटिंग स्टिल इज सेम जैसा एवोपरेटिंग पैन में बताया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, but this evaporating still is also based on the principle of convection method, ठीक है। तो convection method को यूज करके ही heat transfer किया गया है evaporating still में भी, ठीक है। तो evaporating still की वर्किंग है कि इसमें क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है उसे पहले एवोपरेटर में फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद सेम स्टीम थ्रू द स्टीम इनलेट, स्टीम इंट्रोड्यूस इनटू द जैकेट। जैकेट में जब इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हीट है, जो स्टीम है, वो अपनी जो हीट है वो लिक्विड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मेथड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद इन द एवोपरेटर, ठीक है। जब हीट ट्रांसफर सफिशिएंट हो जाता है, एवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू द गैस। ये जो गैस जो लिक्विड से निकलती है, ये गैस जाके कंडेंसर में जाती है, वहां पे जाके
अगेन इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, और जो लिक्विड होता है वो रिसीवर में आके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो एवोपरेटिंग स्टिल है एंड एवोपरेटिंग पैन है, उसमें जो मेन डिफरेंस यही है कि जो एवोपरेटिंग पैन होता है उसमें जो सॉल्वेंट रिमूव होता है प्रोडक्ट से वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ एवोपरेटिंग स्टिल जो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में वो बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर अगेन रिसीवर में आके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ एवोपरेटिंग स्टिल वी यूज अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट है उनमें अगर आपको एवोपरेशन प्रोसेस कैरिड आउट करना है तो इन दैट केस एवोपरेटिंग स्टिल्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? पिक्चर दिखाई पड़ रही है? यस मैम। ठीक है। तो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो नीचे एक एवोपरेटर बना है, उसके ऊपर एक ट्यूब टाइप का बना हुआ है एंड कंडेंसर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हीटिंग होती है, हीटिंग की वजह से जो लिक्विड है उसमें से वेपर्स निकलने लगती है, ये वेपर्स कंडेंसर में जाके कन्वर्ट हो जाती है अगेन लिक्विड में, और जो ये लिक्विड होता है कंडेंसर में से निकलते हुए रिसीवर में आके कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द एवोपरेटिंग स्टिल। क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक है। ये प्रोसेस अल्कोहल फॉर जब अल्कोहल होगा तब होगा ना, अल्कोहल फॉर्म में? हाँ, मतलब एवोपरेटिंग स्टिल आप उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट हो या फिर वाटर, मतलब कोई भी सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट होगा तब हम एवोपरेटिंग स्टिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एवोपरेटिंग पैन यूज कर रहे हैं उसके केस में जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही मेनली होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। ठीक है। एक पॉइंट और है, जितने भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं हमेशा कोशिश की जाती है कि जो भी सॉल्वेंट हम एवोपरेशन प्रोसेस से निकल के आ रहा है उसे हम दोबारा रीयूज कर सकें, ठीक है। तो एवोपरेटिंग पैन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो उड़ने के बाद एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है, लेकिन एवोपरेटिंग स्टिल में जो अल्कोहल आपका निकल रहा है या जो सॉल्वेंट निकल रहा है वो कंडेंसर की हेल्प से दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हम रिसीवर में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसीवर में सॉल्वेंट आ गया है उसे हम आगे और किसी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, हम कोई भी प्रोसेस अगर इंडस्ट्री में परफॉर्म किया जाता है उसमें देखा जाता है कि मिनिमम वेस्टेज हो और जो भी प्रोडक्ट आपका निकलता है उसे हम दोबारा से रीयूज कर सकें, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट एडवांटेज, evaporating still is easy and simple in construction, easy to clean and maintenance is also easy. The vapors that are condensed in the evaporating still is convert into the liquid. So for the costly solvent, जो अगर आप costly solvent अगर use कर रहे हैं तो वो recovered हो जाता है, जैसे ethyl alcohol, ठीक है। ये जो लाइन है या ये जो मतलब एक फीचर है ये एवोपरेटिंग पैन में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एवोपरेशन इज कैरिड आउट अंडर अ रिड्यूस प्रेशर एंड इज परफॉर्म बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप, ठीक है। जो एवोपरेशन रिड्यूस प्रेशर में परफॉर्म किए जाते हैं ये उन ड्रग्स के लिए किया जाता है जो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस प्रेशर, अगर आपको किसी एवोपरेटर के अंदर रिड्यूस प्रेशर आपको प्रोवाइड करना है तो रिड्यूस प्रेशर के लिए वैक्यूम पंप को यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इन द केस ऑफ एवोपरेटिंग स्टिल हीटिंग सरफेस इज लिमिटेड, मतलब जितना सरफेस होगा उतने में ही हीट कर सकते हैं। एवोपरेटिंग स्टिल इज नॉट सुटेबल फॉर द थर्मोलेबाइल ड्रग्स, ओके। तो जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स होती हैं उनके केस में हम एवोपरेटिंग स्टिल को यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड को कंटिन्यूअसली हीटिंग दी जाती है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है, एक चीज बतानी थी, कोई भी लिक्विड बॉयल करना कब शुरू करता है? मैम जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेयर, आप लोग वेपर प्रेशर बताए, वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर क्या होता है? मैम जब लिक्विड बॉयल होता है तो वेपर्स जो
प्रेशर। मैम वेपर का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर होगा। प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जब आप किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल की हीटिंग करते हैं तो लिक्विड आपका जब गैस में कन्वर्ट होता है तो एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, जब मैम, आपका वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक पैन रखा हुआ है, पैन में आपने लिक्विड को फिल किया है, अब उस लिक्विड को आपने गैस पे रख दिया है। ठीक है, तो लिक्विड जो आपने फिल किया है वो एक लेयर होगी ना, जो सबसे टॉप लेयर होगी, उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो और एक नीचे से जो प्रेशर लगेगा, जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल एक प्रेशर जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर से लिक्विड की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है, तो एक कंडीशन आती है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जब ये दोनों प्रेशर आपके इक्वल हो जाते हैं, आपका जो लिक्विड है बॉयल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन तब आती है जब आपका लिक्विड, आपने देखा होगा जो पानी होता है वो स्टार्टिंग में उबलना शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो वो उबलना क्यों शुरू नहीं होता है? क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, तो इस जब तक ये कंडीशन रहती है आपका एवोपरेशन होता रहता है और आपके बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस कंडीशन में बबल्स जो लिक्विड है उसमें फॉर्म नहीं होते हैं और एवोपरेशन प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कंडीशन पे जो लिक्विड है उसमें बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, पानी आपका उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमेशा दिमाग में बिठाइएगा, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है लिक्विड आपका उबलना शुरू होता है। लेकिन अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, लिक्विड आपका उबलेगा नहीं, बस गर्म होता रहेगा, उसमें से हल्की हल्की सी आपके वेपर्स बनने लगेंगे। ठीक है, समझ में आया? मैम हाँ बेटा। प्रदीप कह रहे हैं मैम अब भी वो ज्वाइन नहीं हुए हैं और मैम रीज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं मैम। हाँ, मैंने कर लिया, प्रदीप का दोबारा से आ गया है। प्रदीप बेटा मैंने ऐड तो कर लिया है। चलिए, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं बेटा क्लियर हो गया है? मैम एक बार और बता दीजिए, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के देखिए, एक जो प्रेशर होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर प्रेजेंट होता है, उसका जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 760 mmHg। ये पढ़ा है? 760 mmHg इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपके हवा में या जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, आपने गैस लिया, गैस में एक पैन रखा, पैन में पानी को फिल किया। ठीक है, तो जब आप पानी को फिल करते हो तो उसकी एक लेयर बनती है, ऊपर एक लेयर रहती है जो टॉप लेयर होती है। उस टॉप लेयर, पानी की जो टॉप लेयर है, उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या एक्ट कर रहा है वो आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब तक आप पानी को गर्म नहीं करते हो पानी में कोई मॉइस्चर नहीं बनता। आपने देखा होगा अगर आप ऐसे ही भगोने में पानी भर के रख दोगे, ढक के रख दोगे, कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी पानी को हीट करना जब शुरू करते हो तो आपने देखा होगा धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। धुआं निकलता है? यस मैम। तो जब धुआं निकलता है मतलब उस लिक्विड से एवोपरेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, तब जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक आपके पानी से धुआं निकलता रहेगा पर बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली हीटिंग करते रहेंगे लिक्विड की, तब एक स्टेट आएगी जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे जो पानी है अब वो उबलना शुरू हो जाएगा, उसमें बबल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, तो ये कंडीशन इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब आगे डिस्टिलेशन चैप्टर में बताऊंगी उसमें ये जो दो कंडीशंस हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
वेपर प्रेशर मीन्स होता है जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो वेपर्स बनती हैं उनकी वजह से जो प्रेशर बनता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर होता है वो पानी के अंदर बनता है। ठीक है, और जो पानी के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउ कम टू द फैक्टर्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन द एवोपरेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट इज द टेम्परेचर, as rate of evaporation is directly proportional to the temperature of the liquid। ठीक है, अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे then rate of evaporation is also increases। ठीक है, but sometime due to continuous heating decomposition of sensitive drug is occur। ठीक है, for example glycoside, alkaloids, they are decomposed at temperature below 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी आप कंटिन्यूअसली हीटिंग कर रहे हैं और तो कई बार वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स की हीटिंग कर रहे हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव है तो उनके केस में टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है और टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि उसका टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, सेकंड है टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, टेम्परेचर के साथ टाइम का कोरिलेशन है। अगर आप किसी भी ड्रग की अगर आप हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, when exposure of a drug is performed at high temperature for a short duration of time, जो एक्टिव प्रिंसिपल जो ड्रग में प्रेजेंट होते हैं वो कम इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ड्रग को लो टेम्परेचर पे रखेंगे एंड जो उसका एक्सपोजर है वो काफी टाइम के लिए रहेगा तो वो ड्रग ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि अगर आप किसी ड्रग की आपको अगर एवोपरेशन प्रोसेस उसमें परफॉर्म करना है तो अगर आप उसे मैक्सिमम हीट पे रख दो और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो अगर कम रखेंगे तो जो ड्रग के अंदर एक्टिव प्रिंसिपल प्रेजेंट होंगे वो कम खराब होंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर उसी ड्रग को कम टेम्परेचर पे रखोगे और 1, 2, 4 घंटे के लिए रख रहे हो, 6 घंटे के लिए रख रहे हो तो जो एक्टिव प्रिंसिपल ड्रग में प्रेजेंट है वो ज्यादा उनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ठीक है, सबको पता है कि जब हम किसी भी लिक्विड की हीटिंग करते हैं मॉइस्चर फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हीटिंग अगर आप बहुत कई ज्यादा टाइम के लिए करते हो तो मॉइस्चर फॉर्मेशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप किसी फॉर्मुलेशन में उसकी फॉर्मुलेशन की हीटिंग कर रहे हैं एंड मॉइस्चर आपका कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द मॉइस्चर प्रेजेंस, sometime hydrolysis reaction is carried out, so due to this hydrolysis जो ड्रग है या डोजेस फॉर्म है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डोजेस फॉर्म है उसमें मॉइस्चर कम से कम बने, इसके लिए क्या करेंगे, उसको आप हाई टेम्परेचर पे मतलब उसे रखोगे, एक्सपोज करोगे एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और लास्ट में जब उसमें मैक्सिमम एवोपरेशन हो चुका होगा तब लास्ट में उसका जो भी ड्रग है या जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, आप हाई टेम्परेचर पे रखोगे या लो टेम्परेचर पे रख के उसको थोड़े टाइम के लिए रख दोगे तो जो मॉइस्चर है वो कम बनेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि मेनली आप कितने टाइम के लिए रख रहे हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा टाइम के लिए रखोगे कम टेम्परेचर में तो मॉइस्चर भी ज्यादा बनेगा और जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो भी ज्यादा खराब होंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप हाई टेम्परेचर पे रखिए और शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए रखिए तो उसमें मॉइस्चर भी कम बनेगा, सेकेंड जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो भी कम इफेक्ट होंगे। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। आपको किस टाइप का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ एवोपरेटर्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेटेड लिक्विड चाहिए, सेमी सॉलिड चाहिए या सॉलिड फॉर्म में चाहिए है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन एवोपरेटर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है एजिटेशन।
एजिटेशन करना या एजिटेशन और स्टीयरिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार होता है जब आप कंटिन्यूअसली हीटिंग करते हैं किसी भी लिक्विड की तो एक व्हाइट कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है ओवर द टॉप ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इस लेयर की वजह से जो एवोपरेशन है वो प्रोसेस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम अगर हम लिक्विड की स्टीयरिंग करते रहेंगे तो जो ये फिल्म है या स्कम है ये फॉर्म नहीं हो पाएगा एंड प्रॉपर एवोपरेशन प्रोसेस कैरिड आउट हो पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। 6 point है surface area. Rate of evaporation is directly proportional to the surface area of the evaporator. ठीक है, जितना ज्यादा surface area होगा उतनी जल्दी evaporation process carried out होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड टू बी एवोपरेटेड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मींस ये पॉइंट मैंने अभी बताया था कि जो रेट है एवोपरेशन का वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है द लिक्विड हैज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब अपना जो लिक्विड की अगर आप हीटिंग करते हैं जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो लिक्विड है उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर जितना जल्दी बन जाएगा उतना जल्दी उसका रेट ऑफ इवोपरेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर, ठीक है। इन शॉर्ट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर मतलब हो गया ह्यूमिडिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर आप अभी देखेंगे इस टाइम पे जब एटमॉस्फेयर में बहुत नमी होती है, अगर आप कपड़े डालते हैं धोने के बाद तो वो कपड़े सूखते नहीं है नमी में, ठीक है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप अप्रैल मई में कपड़े बाहर डालते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक है उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, ठीक है। ये समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसी तरीके से अगर आप जहां पे भी जैसे मान लीजिए आपने एवोपरेटिंग फैन आपने ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा है जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत है तो जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो भी स्लो होगा क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, ठीक है। लास्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। कोई भी मेथड को सिलेक्ट करने से पहले ये देखा जाता है कि उसमें जो फ्यूल है, लेबर कॉस्ट है या एरिया कितना जरूरत पड़ेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट हीट या रिकवरी ऑफ द सॉल्वेंट। So these are the factors that are considered during selection of any evaporator, ठीक है। So these are the factors ये हम consider करते हैं evaporation process में, ठीक है। ये फैक्टर्स सबको क्लियर हो गए हैं या रिपीट करना पड़ेगा? क्लियर है बेटा सबको क्लियर हो गया है? मैंने क्या बता दीजिए फैक्टर्स एक बार फिर से बताने हैं। मैम। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर मींस हो गया है जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मेथड यूज किया, चाहे इवोपरेटिंग स्टील यूज कर लीजिए या इवोपरेटिंग फैन यूज कर लीजिए, आप कोई भी मेथड अगर यूज करते हैं इवोपरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए तो पहले ये देखा जाता है कि जो इवोपरेटर आप ले रहे हो उसके लिए हमें फ्यूल की कितनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो स्टीम प्रोड्यूस करना है उसके लिए आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना एरिया चाहिए है उस पैन को रखने के लिए, या फिर जो भी आप इवोपरेटर यूज कर रहे हैं उससे जो सॉल्वेंट है वो हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कितनी हमारी हीट वेस्ट होगी। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं बिफोर सिलेक्टिंग एनी इवोपरेटर, ठीक है। समझ में आया? जैसे आप लोग अगर मार्केट में जाते हो तो कोई भी कपड़ा खरीदने से पहले 10 बार चेक करते हो कि इसका कपड़ा अच्छा है, कॉस्टली तो नहीं है, ये सब चीजें चेक करते हैं खरीदने से पहले। यस मैम। इकोनॉमिक जो है हाँ, तो सेम वही चीज है कि किसी भी एवोपरेटर को यूज करने से पहले ये देखा जाता है कि जो एवोपरेटर आप यूज कर रहे हैं उसमें कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी बताए हैं कि फ्यूल कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट, फ्लोर एरिया एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आई होप सबको क्लियर हो गया है। यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.